with the kids. I Saksham and I Fear. We will take you through the melodious symphony of KPSCians. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome on behalf of the KPS Kindergarten to the most awaited event, Graduation Ceremony 2022-23. Success through superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. We are blessed to have such teacher who tempts us, pushes us, and leads us to achieve our dream. Graduation Day is a time to celebrate the achievements of each and every child. I, Sirat, and I, Saksham, welcome you all in Graduation Ceremony Session 2022-23. It's time to invoke divine power. Bhavewari Mata by lighting the lamp. May I request Chief Guest, Principal Ma'am, Chairman Sir, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, and Air Sir for lighting the lamp. Our respected principal man to present to bouquet to our esteemed chief guest. Yes. सामने Wait. That's so good. I would like to request our junior head boy Ekam Singh for welcome address. Ceremony in this magnificent setting. Honorable Chief Guest Tasbina Sheikh Ji, District Audit Officer, Cooperative Societies Kathua, respected Chairman Sir KPS, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, distinguished guests, our graduates, and ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you. As a head boy junior, it gives me a great pleasure and pride to have been chosen to welcome you all. Much awaited Saraj Graduation Day 2022-23. This day is quite special for KPSCians as it is the celebration of the first success in life. Their preschool graduation witnessed by their proud parents who are watching them growing into future achievers. Once again, my heartfelt congratulations to our graduates and their family, and my best wishes for their future endeavors. Thank you. मैं हीरो
Please welcome our budding stars on the stage for folk dance. Please clap for them. Performance. Are ready with amazing graduation performance for all.
say something very special to you. 1, 2, 3, 4. 2 little words, 2 little words, 2 little words. Now goodbye. It's the end of the year. Graduation is here. Our 2 little words to our teachers, moms, dads, grandparents, all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You taught us to read and write. You taught us to learn. You told us if we all right how to take our turn. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You helped us to tie our shoes. We're chasing colors too. There's so many things you do. We just wanna say thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Sira, you know, I have an idea in my mind. Chakshu, what idea? मैं कैसी ऐप बनाना चाहता हूँ जो हमें फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म करे। जैसे कि अगर अर्थक्वेक होने वाला है और किसी को कुछ पता नहीं है तो कितना बड़ा होगा। अगर उसे पता होगा कि अर्थक्वेक होने वाला है तो जल्दी से सारी तैयारी कर लेगा जिससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। Oh wow, Sapsho, very great idea. अगर आपके पास भी ऐसी कोई आइडिया है तो उसे आगे लाए तभी देश आगे बढ़ेगा। Now it's time to acknowledge the talent of our hardworking friends. For this, I would like to call upon my worthy teacher for further proceedings. Thank you. Yesterday was a dream, tomorrow is a vision. But a day well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Carrying the same vision, KPS family is successfully able to conduct Saraj, a graduation day 2022-23. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का करतार पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। और एक बात कहना चाहूँगी आप सभी से आज, बेहतर को बेहतरीन बनाना है केपीएस की जिम्मेदारी। बेहतर को बेहतरीन बनाना है केपीएस की जिम्मेदारी। बस चाहिए आपका सहयोग और आपकी भागीदारी। धन्यवाद। Thank you, dear kids, for letting us share this dice with you. You did an astounding job. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. They truly deserve it. Thank you. अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। और अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चे सूरज की तरह चमके तो उनके साथ साथ हमें भी जो है वो जलना होगा। Now it's time to acknowledge the talents of our brimming stars. Let's begin with felicitation ceremony. To appreciate the abilities of senior KG students and to praise them, I would like to call upon Honorable Chief Guest, Chairperson KPS, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am,
AO sir and very esteemed Dr. Arvinder Singh Aman sir to give away the certificates and medals to the kids. से सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। जी मैम। पढ़ाई करते हो उससे कितना पढ़ते हो पढ़ाई जी ये सर खड़ो जाना। Congratulations once again. आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती है। हेलो, आपका क्या नाम है? अनन्या। आपको अच्छा लग रहा है नेक्स्ट क्लास में जाके भी? अच्छा लग रहा है? Congratulations, अपनी डिग्री भी ले लो। हमारा तो इतनी अच्छी कोई डिग्री देता ही नहीं था। यस आप ऐसे कर सकते हो। जी मैम यस हेलो, क्या नाम है आपका? क्या? अरे very good, ये आपके लिए है। Congratulations। पढ़ते हो आप? अच्छा पढ़ते हो या सब कुछ पढ़ते हो? अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। जी सर ये आपकी डिग्री बहुत बड़ी है। ये भी पकड़ लो, ये भी आप ही का है। Congratulations। बेटा रुको कौन नहीं सर वो आप करवा दो। यस आपका क्या नाम है? क्या? अपनी शर्मा। Congratulations. यस आप भी डालो, आप भी डालो। आप अपनी वाइफ को भी ले आओ। आपको अच्छा लगा नेक्स्ट क्लास में जाके? Parents, I'd like to request you all to please give them a good round of applause to boost their confidence for us. Thank you. बच्चे तो देखो यार आपका नाम क्या है? मयंक शर्मा। Congratulations. The students standing here today on this. कोई बात नहीं।
जी सर, हाँ जी। आपको नई क्लास में जाते हुए आपको भी चाहिए क्या नाम है आपका? अनंत। हेलो। आपको अच्छा लग रहा है नेक्स्ट क्लास में जाना? वेट। सभी के लिए जोरदार आपको अच्छा लग रहा है? आपको अच्छे भी दिखेगा। बेस्ट कांग्रेचुलेशन। क्या नाम है आपका? आपने क्या बनना है? इसको ऊपर साइड में बॉयज यहाँ से नहीं, कुछ साइड से। वाइट यस सर। वेट। अच्छा लग रहा है आपको? हेलो, इस साइड बेटा। बच्चे इधर देखो बेटा। वेट। ओके। थैंक यू। Ladies and gentlemen, thank you. आपका नाम क्या है? हाँ? आपका क्या नाम है? स्कूल मैम 4 months back. Congratulations, आपने बहुत अच्छा डांस किया और पढ़ाई भी अच्छी करना। जी। एक तो कम्प्लीटली साथ साथ डांस भी कर रहे थे। छोटे बच्चे ना वो भूल हो जाते हैं। बहुत अच्छा था, बच्चों को
जी मैम, वेट यस, ओके। Bandra, ladies and gentlemen. मैं थोड़ा डाउन लगा। ये सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, नौकरी देगा। यस, Peter, Nirti Suryavanshi and Geetika. Second position goes to them. Give them a huge round of applause, ladies and gentlemen. And Aliza Chaudhary. क्या बनना है आपने? आर्मी में था? Congratulations. क्या हुआ? जी आगे और अच्छी पढ़ाई Congratulations. जी जी मैम, And third position goes to Advik Vilavaria. जी मैम, मुझे लगता है पक्का कोई कोर्स करा रहे हैं यहाँ एनडीए पास अभी Class third. First position goes to Himansh. जी मैम, जी बच्चे तो बेटा एक साथ देखो नाम लो। Second position goes to Arif Shah. Third position goes to Harsh. अच्छा सिंगर तो फिर नेक्स्ट टाइम इनका भी परफॉर्म करना है From class 4, first position goes to Katyayani Sharma. Second position goes to Dipakshi Rajput. जी मैम, To Arif Bharadwaj. बहुत अच्छा जी मैम, Class 5th Strawberry. Second position goes to Jagnoor Singh. जी यस, Third position goes to Swastik Sharma. Request all the parents to keep clapping for these kids as they truly deserve it. Please give them a huge round of applause. Parents are requested to take their seats. Parents, kindly take your seats. Goes to Swastika Gupta.
position goes to Swastika Gupta. क्या बनना है आपको? डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर। Goes to Shivam. Second position goes to Keshav Salaria. जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। Class 8, first position goes to Kanika. Third position goes to Kritika. ये बेटा यस जी मैम थोड़ा आगे जाओ जी मैम यस She's Gitika from class first. She's got second position. The other candidate. From class 9, first position goes to Arshpreet Kaur. बहुत अच्छी बात जी मैम है, ठीक है? क्लियर हुआ ना, रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, मैं तो 12th की बात कर रहा था। पेरेंट्स, आई थिंक मैं आपसे बहुत एक छोटी सी चीज़ मांग रही हूँ इन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए। प्लीज़ आप कम से कम Second position goes to Arnav Sangral from class 9. आपकी तालियों में आज वो नितेश मेहनत वीडियो साहब, अब्रो साहब, चेयरमैन सर, my AR from Barnoti, retired additional secretary, Arts and Cultural Academy. बाकी सारे पेरेंट्स और लिटिल बडिंग, अब मैं चिल्ड्रन बोलूँ, स्टूडेंट्स बोलूँ, भाई बहन बोलूँ, सब कम है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को कंपटीशन देते हैं इस एज में। और मुझे लग रहा था कि वो छोटे बच्चे, हम अपनी एज में वैसे ही बच्चे थे जो माँ के आंचल के पीछे छुपने वाले हैं, और यहाँ पे आज देखने को मिला कि भैया इनमें ही असल टैलेंट है, चाहे वो एंकरिंग का हो, डांसिंग का हो, पब्लिक स्पीकिंग वाज ऑसम, और सबसे बड़े चेयर लीडर्स, चेयरमैन, प्रिंसिपल, और इतना अच्छा स्टाफ मैंने पहले नहीं देखा कभी, और ना ही हमारे टाइम होता था। आई श्योर मैं बनी से पढ़ी हूँ और मैंने कभी ऐसा इतना अच्छा स्कूल नहीं देखा, क्योंकि हमें ये पता होता था सुबह 8 बजे उठना है, खाना खाना है, स्कूल जाना है, और स्कूल जाने से पहले हमने प्लानिंग करनी होती थी कि छुपना कितने बजे या बंक कहाँ पे करना है, क्योंकि पढ़ने का इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। मगर आज के टाइम में ऐसी एक्टिविटीज को छोड़ के जाना कौन चाहेगा? भाई डांसिंग भी सिखाते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं, अच्छा फायर करना, वो भी, हर एक कल्चरल एक्टिविटी है जो मतलब मुझे यहाँ कमी किसी चीज़ की नहीं लगी। और स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस, इंजीनियर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, अब बचा क्या हम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा। इनफैक्ट ये हमारे लिए एक वो था, चैलेंज था कि भैया तुम भी दिखाना करके। आज के टाइम में स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें नर्चर करनी है खुद में। फर्स्ट, पेरेंट्स का ओबीडियंस। कहते हैं कि अगर ये छोटे से ही सिखाया जाए तो फ्यूचर जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर फैमिलीज का चेंज हो रहा है, तो ये डायर नीड है हर एक पेरेंट को इनकलकेट करने की कि मेरा बच्चा कल को ओबीडियंट बने। ऐसा ना हो कि 2-4 मेहमान आए हैं, तू कौन और मैं कौन। वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो है, जो हमारी लेगेसी है, वो कंटिन्यू करनी चाहिए। वो तभी कंटिन्यू होगी
जब हम पेरेंट्स भी या टीचर्स भी बच्चे पे उसी तरह का फोकस करते हैं। सेकंड, करंट जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है? एक डिप्रेशन और दूसरा एडिक्शन टू ड्रग्स एंड मोबाइल, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सपोज्ड हो जाते हैं और उससे हमें डिप्रेशन भी होता है। भाई हम लोगों से ही पूछ लो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से भी हम लोगों को भी डिप्रेशन होता है। अब तो हमारी मजबूरी हो गई है कि दफ्तरी काम भी मोबाइल से कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ जहाँ स्कूल में ही बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, हर एक तरह का डेवलपमेंट दे रहे हैं, ये कंटिन्यू करना चाहिए और घर में भी होना चाहिए। ये नहीं है कि पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं और अपना काम समेट रहे हैं, अपनी नौकरी देख रहे हैं, क्योंकि यही वाला बच्चा जो है आज का सीड है और कल का फ्लावर होगा और कल की जनरेशन इसी बच्चे पे डिपेंड होगी, उसके थॉट पे डिपेंड होगी। कंट्री का प्रोग्रेस उसके थॉट पे है। अगर आज प्रोग्रेस ये है कि भाई मैं 2 घंटे मोबाइल देख रहा हूँ, कल 4 देखूंगा, परसों 6 देखूंगा, उससे डिप्रेशन आ जाएगा, सोसाइटी एक ट्रॉमा में रहेगी। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को एक तो ओबीडिएंट बनाना है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी से दूर रखना है। उसके लिए मतलब जैसे मैं मोबाइल का जिक्र कर रही थी, या एक कंपनी भी होती है, पेयर प्रेशर ग्रुप भी रहता है। तो अगर बच्चा कॉन्टिन्यूसली स्कूल में अच्छे स्कूल में एंगेज रहे और अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहे, तो वो उस ग्रुप में भी इंडल्ज नहीं हो सकता जहाँ पे उसको बाकी सारी एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर मिले जो डेनिग्रेट करता है एज अ सोसाइटी को भी, एज अ पर्सन को भी। वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी अपने बच्चे को शुरू से ही काउंसलिंग करते जाओ। काउंसलिंग इन द सेंस कि वो आपसे चीज़ें ना छुपाने लग जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं जब वो चीज़ें छुपाने लग जाते हैं तभी वो मतलब नेगेटिव थॉट्स का शिकार या डिप्रेशन का शिकार, या कोई ऐसी एक्टिविटी विच इज़ अगेंस्ट द कल्चर, विच इज़ अगेंस्ट द लेगेसी, विच इज़ अगेंस्ट द कंट्री एंड विच इज़ अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो उन पे भी ध्यान रखना है एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट। ये हमें चीज़ें जो है अपने बच्चों में देखनी है। बाकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम वो बच्चों को सिखाना है। टाइम की कदर, जब टाइम ही ख़त्म हो जाता है तो फिर मतलब हम पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करते रहते हैं। ये सेंस ऑफ गिल्ट बच्चों में नहीं होना चाहिए। वो एक बेटर स्कूल सिखा सकता है और बेटर पेरेंटिंग सिखा सकती है। तो आज की जनरेशन से मेरा भी ये रिक्वेस्ट होगा, और जहाँ जहाँ मैं बच्चों को मिलने जाती हूँ मैं यही चीज़ें बोलती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं। हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पहाड़ी लोग हैं तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर है भी नहीं हमारा कि एक्स्ट्रा गाइडेंस दे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरे खुद फैमिली में एक बच्चा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं उसको जानबूझ के उस पढ़ाई वाले सेंस में लेके आ रही हूँ कि भाई सिंगर तो तू बन लियो, पहले तो पढ़ ले, कहीं बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी कर ले, क्योंकि अगर तू सिंगर बनने चला तो पैसे गिनने का पता नहीं होगा, बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हें इंग्लिश बोलने 2 लफ्ज़ नहीं बोलना आते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना वो तुम नहीं कर सकते हो, पैशन फॉलो कर रहे हो बट एंड में लुटे जा रहे हो। वो लुटना नहीं है। तो हर किसी बच्चे को जो है एक बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। अपने एम्स को, गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए मतलब डोंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। दिस इज व्हाट आई हैव अचीव। और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होने के साथ साथ सोसाइटल डेवलपमेंट भी करो। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देते हैं। टीचर्स तो देंगे ही देंगे, बिकॉज उनका ये बेसिक प्रिंसिपल ही है स्कूल में कि हमने भाई इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे कॉन्सेप्ट उनको सिखाने हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो वो घर में करेंगे। जैसे अगर मोम और डैड अपने दोनों बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करेंगे, तो वो आगे ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। हम बहुत सारे प्रेजेंट सोसाइटी में हम बहुत सारे इवेंट्स देखते हैं कि भाई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, लड़का लड़की, ये मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन इंस्टिंक्ट्स ह्यूमन को डेनिग्रेट करते हैं और डिग्रेड करते हैं। इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाना है। और ये डिफरेंसेस ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जितना एजुकेटेड होते जाएंगे वो डिफरेंसेस ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि जब डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे हमारा सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बढ़ेगा। स्कूल एक बेस्ट मीडियम होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए, और ये कंटिन्यू करता रहना चाहिए। कोविड के टाइम में बहुत सारे बच्चों की हालत खस्ता हो गई, पढ़ाई बंद हो गई, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ख़त्म हो गए और उनका परफॉर्मेंस वैसे वैसे डिग्रेड होता गया।
इनका बैच ही एक अलग बैच बना दिया है, कोविड बैच। तो उस डिलेमा से बाहर आने के लिए अब एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एज वेल एज सोसाइटी को भी, कि उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहाँ पे कमी हुई है उसको पहुँचे, ताकि हर एक बच्चा जो है एक बेहतरीन शहरी, मतलब अच्छा सिटीजन बने, एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करे, रेदर देन मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज और एक दूसरे से जेलसी, डिप्रेशन, ये सब बीमारियों से दूर ही रहे। तो मेरा एक अच्छा मैसेज होगा, जितने आप छोटे हो उतने ही मिलजुल के रहते हो और उतना ही एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, उतना ही अच्छा फ्रेंडशिप सर्कल बनता है। ये कंटिन्यू करते रहना चाहिए और पेरेंट्स को भी उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। बाकी गुड लक टू ऑल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आप सब ग्रेजुएट हुए हो, जितने बड़े होते जाते हो उतनी अच्छी आपकी क्वालिटीज़ बढ़ती हैं और उतना ही अच्छा मैसेज आप पूरी फैमिली को लेके जाते हो और पूरे समाज को उतना ही अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हो। सो गुड लक टू द ऑल स्टूडेंट्स who are graduated now from their past classes and entering to the new classes, and best wishes to the principal, chairman and teachers who are actually doing their marvelous job. Thank you so much. May I please request Dr. Arvinder Singh Aman to present a token of gratitude to Tasbina ma'am. Sir, please. I'd like to request all the dignitaries to present. ये सबसे अच्छे एथिक्स के टीचर हैं। कभी भी आपको स्कूल की ज़रूरत पड़ी, ये कोई स्टूडेंट यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता है, ये हाईएस्ट मार्क्स है दोनों भाई। जो हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट है मैम, एक्चुअली मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ मेरा सरप्राइज ही होता है, मैं कभी रेडी होके नहीं आता। तो आज भी ऐसा ही है। सो जैसे कि मैम ने बताया, आप सब ग्रेजुएट हुए हैं। आज का दिन जो हमारे ना बडिंग फ्लॉर्स है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आज ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, और हमने उनकी ये जो फंक्शन बेसिकली इट्स अबाउट टू ग्रूम देम, टू मेक देम फील कॉन्फिडेंट। सो इसमें मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का रोल है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका रोल है, और टीचर्स का रोल है कि आप उनको कैसे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे ना स्टेज पे आना उनको कोई पता नहीं है, वो आते हैं, मजाक करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देना ये हमारा काम है। तो मुझे लगता है ये जो फंक्शन है इट इज मोर फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर्स, और उनके लिए ज़्यादा है बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपने पूरे साल मेहनत की और आपको आज हम कुछ प्राइज दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो क्लैप का था वो आज थोड़ा कम था, आपको मैक्सिमम क्लैप करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे बड़े ज़्यादा खुश होते हैं। रेदर देन कि हम उनको कोई गिफ्ट दें या कुछ वैसा करें, उससे ज़्यादा एप्रिसिएशन वो फील करते हैं जब कोई क्राउड उनके लिए क्लैपिंग करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी फंक्शन होगा, क्योंकि दिस इज ये अभी एक फंक्शन है, मुझे लगता है जैसा ये ना स्कूल है, और इतने मतलब हमारे टाउन में ऐसा स्कूल तो मैंने भी नहीं देखा है। तो फॉर दैट मेरा ये बड़ा वो है कि ये इतनी मेहनत करते हैं, ये ऐसे ना फंक्शन करते हैं। मुझे याद है कि हमने अपनी लाइफ का पहला जो जैसे ये एनुअल डे फेस्टिवल ही है जो मैंने देखा था, वो हम ही ने शुरू किया था अपने कॉलेज में बीटेक के टाइम में। सो तब मेरी उम्र मुझे लगता है 21 साल थी। तो आज के 4 या 5 साल का बच्चा, और उसके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं हमारे जो ना चेयरमैन सर हैं या हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं, तो मुझे लगता है वो एक बड़ा एप्रिशिएबल पार्ट है। और जितने भी पेरेंट्स हैं, आपको अपनी साइड से इनको हर साल आइडियाज देने चाहिए कि आप इसको कैसे बेहतर बना सकते हो। सो मुझे लगता है उस होप के साथ आपको हर साल आगे आके स्कूल की हेल्प करनी चाहिए, ताकि इन रिटर्न जो आपका स्कूल है वो आपके बच्चों को एक ऐसी मतलब मैं तो बोलूँगा शिक्षा दे, ताकि वो आगे आने के टाइम में विदाउट द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स वो आगे अपना लाइफ में चले। क्योंकि एक चीज जो मैंने लाइफ में सीखी है वो ये है कि एक पेरेंट के लिए जब उसका बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा दौलत उसके लिए कोई नहीं होती। उसके पास पैसा चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर उसको ये पता है कि मेरा बेटा जो है कल को अगर मैं नहीं इसके सामने हूँ, तो इसके अंदर वो संस्कार है, वो हर चीज है कि ये पूरी वर्ल्ड को फेस कर सकता है। सो दैट इज द ट्रू इन द सेंस कि आप बोलते हो कि हमने पेरेंटिंग की है।
सो उसमें ना स्कूल का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो आपको समझना भी चाहिए, और आने वाले टाइम में आपको स्कूल को आइडियाज भी देने चाहिए कि हाँ मैं जब अपने ना बच्चे को ना घर में देखता हूँ या देखती हूँ तो उसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको चेंज करें, इसको ठीक करें। तो मुझे लगता है दैट पार्ट पे काम करना चाहिए, और यही एक ऐसा स्कूल है जो उस पर काम करता भी है, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। हमने तो कभी ऐसा एनुअल डे फेस्टिवल या फंक्शन नहीं देखा। सो विद दीज वर्ड्स, अगली बार अगर मेरे को टाइम मिला तो आई विल कम विद अ गुड स्पीच। सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर कमिंग टू माय माइंड राइट नाउ। थैंक यू सो मच। और मैं जो ये स्कूल जो हमारा है, इनके जो हमारे चेयरमैन सर हैं, जो मैम है, प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द टीचर्स, कि वो हर बार मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से सीख भी करते हैं। दे शो अ वेरी गुड जस्टिस, फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सो मच। Valuable words. On behalf of entire KPS family, I would like to request our worthy teachers, anchors and junior head boy to present a token of love and appreciation to our esteemed chief guest and Dr. Arvinder Singh Aman sir also. Sir has joined us today after his retirement as Additional Secretary, Art and Cultural Academy, Jammu and Kashmir. So we are felicitating him for that. Ladies and gentlemen, give him a huge round of applause. And his wife also. हाँ, ये ठीक रहेगा। बोलिए आप। तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ। मैं सभी पेरेंट्स से सिर्फ 5 मिनट के लिए कहूँगा कि आप कृपया आराम से बैठे रहें। मैं सिर्फ वर्ड ऑफ थैंक्स ही करूँगा और कुछ नहीं। हमारी जो आज की चीफ गेस्ट हैं, हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हैं वो तस्बीना मैडम, और उनके साथ हमारे यहाँ के यंग डायनामिक ऑफिसर मिस्टर साहिल अबरोल, और उनके साथ जो बाकी गेस्ट हैं, यहाँ का प्रिंसिपल का जो पूरा स्टाफ है, KPS का चेयरमैन सर, और हमारे बच्चे जो हमारा भविष्य है, और उनके पेरेंट्स, आप सबको KPS की ओर से बहुत बहुत बधाई इन सभी बच्चों को जिन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी, और ये जो ग्रेजुएट सेरेमनी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई उसमें जो बच्चे इस सेरेमनी में पास आउट हुए, मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत बहुत बधाई, उनके पेरेंट्स को बधाई। मुझसे पहले बोलते हुए मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से सभी एस्पेक्ट्स को टच करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस का लेवल जो यहाँ पर क्या था, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और स्कूल का जो डेडिकेशन है, उसका जो रिजल्ट और जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में, उसके बारे में भी हमारे वीडियो साहब ने भी बात की। मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं पेरेंट्स के साथ एक बात करूँगा और एक बात बच्चों के साथ शेयर करूँगा लाइटर वे में। बच्चों में आपको एक बात बताऊँ कि आप लकीएस्ट बच्चे हैं जो आज की इस दौर में पैदा हुए हैं, और आपकी पेरेंटिंग इतनी अच्छी हो रही है कि जितनी सुविधाएं, जितना एक्सपोजर और जितनी लिबर्टीज आपको दी जा रही हैं, वो शायद हमारे दौर में नहीं होती थी। मैं जब 7th में था और मेरा छोटा भाई 8th में था, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मैं रिसेस के टाइम आऊँगा, आपको शूज़ लेके दूंगा। तो जब हम बाहर आए तो हमने दोनों ने एक जैसी ड्रेसेस पहनी हुई थी, तो शूज़ ले रहे थे, तो मेरे एक अंकल जो मेरे पापा के कज़न थे वो मिल गए। तो उन्होंने पूछा कि कैसे आए थे। उसने कहा बच्चों को मैंने शूज़ लेके देने थे। उसने कहा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मेरे पापा से उन्होंने हमारे बारे में पूछा, तो मेरे पापा ने धीरे से झुक के मुझसे पूछा तू कौन सी क्लास में है। तो मैंने उनको बताया मैं 7th में हूँ और ये छोटा 6th में है। तो उसने पूछा कि ये मुंडे तेरे ये ना, मतलब कि इस तरह के माहौल में हम पढ़ते थे, और हमें आखिर में एक ही बात पूछी जाती थी कि पास हो या फेल हो, बस इतना कंसर्न होता था। और हमने भी सिर्फ रिजल्ट में देखना था कि पास हो गया तो जश्न होता था। आज
हमें उस दौर में जिन बातों से रोका जाता था, आज के पेरेंट्स विश करते हैं कि बच्चे वो काम करें। अभी हम जब बच्चों से पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कह रहे थे हम सिंगर बनना चाहते हैं। मैं उनसे शेयर कर रहा था कि हमारे दौर में हम घर में भी बोल दें कि मैंने गाना गाना, तो हम घर से निकल सकते थे, उससे कम सुझाव होती थी कि आप तूने अब यही काम करने हैं। अब वक्त बदला है, सब कुछ बदला है, और हम खुश हैं कि बरनोटी जैसे ऐसे इलाके में इस तरह का माहौल बना है, इस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें देखने के लिए बने हैं। मैम आपको बताऊं कि मेरा तो प्रोफेशन और पैशन यही रहा है, सारी उम्र मैं कल्चर के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैंने इंटरनेशनल लेवल से लेकर लोअर लेवल तक की सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। मैं आप सभी पेरेंट्स को बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जिन 2 बच्चों ने यहाँ पर कंडक्ट किया प्रोग्राम, उनके चेहरे के जो इनोसेंस, जो उनकी मासूमियत, जो उनकी कमिटमेंट, और सबसे बड़ी बात जो कॉन्फिडेंस का लेवल मैंने उन बच्चों में देखा। आप यकीन करोगे, आज भी रिटायर होने के बाद भी जब भी मैं मंच पे आता हूँ तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ, अपनी बॉडी को, टांगों को कंट्रोल करता हूँ कि अब तो कांपना छोड़ दो। लेकिन जिस तरह से इन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, आई रियली एडमायर देम। मैं उन बच्चों का फैन हूँ आज के बाद, और आई विश, और मैं विश करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ इन बच्चों के बिहाफ पे कि जब ये हमारे दौर में, अपने दौर में आएंगे सोसाइटी को लीड करने की पोजीशन में, तो आप लोग मेरी इस बात को याद रखिए कि बरनोटी गर्व करेगा इन बच्चों पे कि ये बच्चे हमारे बरनोटी के इलाके के बच्चे हैं। और एक बात और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में जितना भी फ्यूचर टैलेंटेड है वो गांव में है, पहाड़ों में है, शहरों में नहीं है। शहरों की लाइफ बड़ी आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है, बड़ी फेक हो गई है। आप बच्चों को, अभी मैम बता रही थी कि वो बनी से हैं, बनी जैसे इलाके से हमारी इतनी यंग टैलेंटेड डायनामिक ऑफिसर हैं, और हमारे ही इलाके में बैठ के वो समाज की सेवा कर रही हैं। इससे बड़ा मॉडल आपके लिए और वो क्या हो सकता है। हम पेरेंट्स ने बच्चों को दूसरों मॉडल को लेकर उनको उनका फैन नहीं बनाना है। हमने अपनी फैमिली से मॉडल्स ढूंढने, अपने बड़ों की, दादों की, परदादों की, अपने नानों की, नानियों की जो अचीवमेंट्स हैं उनके साथ शेयर करनी है। और अपने मोहल्ले में अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको एज मॉडल आपने इंट्रोड्यूस करवाना अपने बच्चे से। मैडम ने एक और बात कही थी, नशे के बारे में बात कही थी। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी ईमानदारी से, जैसे इस बरनोटी स्कूल का ये कॉन्सेप्ट रहा है डे 1 से कि हमने बच्चे एडमिट नहीं करने, अडॉप्ट करने। जब बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो आप बच्चों के, दूसरों के बच्चों के टीचर नहीं होते, आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग शुरू कर देते हैं। हम इसे जब फैमिली के तौर पर लेते हैं तो हमारी सोच कलेक्टिव हो जाती है। मैं आपसे सभी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, आप ये कभी मत सोचें कि मेरे घर का दरवाजे के बाहर का इलाका अगर साफ है तो पड़ोसी के घर के बाहर गंदगी पड़ी है तो मैं मस्त रहूंगा। ये सोच हमें बदलनी है। अगर मेरा बच्चा टाइम से स्कूल जाता है, आज्ञाकारी है, बड़ों की बात मानता है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा खराब हो रहा है और आप उसे देखकर खामोश हैं, ये सबसे बड़े खतरे वाली बात होती है हमारे लिए। हमारे टर्म्स कैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी का भी बच्चा हो वो हमारा भविष्य है, वो हमारे देश की, हमारे इलाके की, हमारे प्रांत की प्रॉपर्टी है। उस पर हमने नज़र भी रखनी है, उसे अपने बच्चे की तरह समझाना भी है और उसका ख्याल भी रखना है। यही मकसद है करतार पब्लिक स्कूल का। और जब तक हम इस कलेक्टिव सोच को लेकर नहीं चलेंगे हम एक बढ़िया समाज नहीं बन सकते। दुनिया ने हमें ग्लोबल विलेज बना दिया है, अब हमें उस ग्लोबल विलेज के रियल कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें कलेक्टिव सोच को अडॉप्ट करना होगा। खासकर जब हम कभी जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी उसके बारे में सोचेंगे, तभी हम एक बढ़िया समाज दे सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप सभी पेरेंट्स का
और ख़ासकर बच्चों का उनको मैं मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। ख़ास करके तस्बीना मैडम जिन्होंने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। इन्होंने अभी मुझे बताया भी कि ये सोसाइटीज़ में वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितने मसले होते हैं, कितना डील करना पड़ता है, 24 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। वीडियो साहब यहाँ पर हैं, उनकी मिसेज यहाँ पर हैं, हमारे एक और ऑफिसर हमारे साथ हैं। मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे जम्मू के यहाँ कठुआ के गुरुद्वारा बोर्ड के कमेटी के यहाँ पर हमारे मेंबर हमारे बीच बैठे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास करके हमारा जो यहाँ पर स्टाफ है, मैं जब स्टाफ वर्ड यूज़ करता हूँ तो किसी भी स्कूल का ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो कैडेट है वो जब तक आप दरबान से लेकर प्रिंसिपल तक सबको इक्वली उनकी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट नहीं करते तो कोई भी इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं सभी को बहुत बहुत सारी मुबारकें देता हूँ। मैम आप एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ आपको मैंने कभी बैनर नहीं देखा, कोई हमारी जो लेटेस्ट जो है यहाँ सब देश था, हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंसी और अपने आप को क्रिएटिविटी में कैसे लाना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर फील करते हुए महसूस होंगी। यही एक चीज़ है जो आपको अपने साथ जोड़ती है, एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह। और क्रिएटिविटी हमेशा कलेक्टिवली बड़ी होती है, इसको आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मत समझिएगा। अगर आपके घर में गुलाब का फूल लगा है, आप जितनी मर्जी 4 बुआरियाँ चढ़ा लें, उसकी खुशबू को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पड़ोसी के साथ जाएगी, वो बाहर से गुजरने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। हम अच्छाई को फैलाने में पूरी कोशिश करें और बुराई को रोक के उसको कंट्रोल करने में पूरी कोशिश करें, तो हम अपना माहौल बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं मीडिया के अपने सभी दोस्तों का जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से यहाँ पर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा बड़ा ये शॉर्ट विजिट था सुबह, कल भी मुझे यहाँ से वो मेरी छोटी भाभी मुझे हुक्म देती है कि आपको आना ही आना, तो मुझे आना पड़ता है। और शॉर्ट विजिट में मैं आया, मेरे साथ भाई मिसेज ने भी छुट्टी ले ली, कहती मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा चलो मेरी भी कंपनी हो जाएगी। और ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, आप सभी मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बड़े हैं। इसी तरह आप हमारे साथ ये रिश्ता बनाए रखें और हम इसी तरह इस इलाके को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में कोशिश करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। समय और शिक्षा का सदुपयोग ही व्यक्ति को जीवन में सफल बनाता है। I am truly privileged to have the pleasant task of extending my gratitude to the distinguished gathering for the celebration of Saransh Graduation Day 2022-23. On behalf of the Qatar Public School, I extend my gratitude to the chief guest for joining us today. Respected video sir, another officer we are having with us, Arvinder sir, ma'am, we are highly honored that you are amongst us today, and we are indeed grateful to all of you for graciously and readily accepting our invitation. At last, life doesn't require that we be the best, only that we try our best. So friends, try your best for success, try to be efficient as possible, and as said by one of the greatest philosopher of all time, Socrates, the only good is knowledge and the only evil is ignorance. So I would like to thank all of you to be a part of this event. I wish you all the very best. Thank you one and all. सारांश को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए जोरदार ताली।